Hello students and welcome to geography class. Students, this is your online class of the geography and I am Anand Pandey, your geography teacher. Students, as you know that now we are studying the chapter number 21 and this chapter is about the transport and the number of topics or the few topics we have covered in this chapter. Now today we are going to cover the airways. Now our topic is the airways. Now we are going to understand about the air transport in our country India. How the air transport work in our country India. Students, again I am telling you that all of you just start to learn about the advantages and the disadvantages of the given transport, because in the board examination most of the questions are depend on the advantages and the disadvantages of the transport. And students, again I am telling you that this is a very, we can say that the high scoring chapter. If you are going to attempt the transport, so you will get good marks, because few questions are given very easy, and just you write the keywords and you will get the marks. So students, now first we are going to check the history of the air transport. Air transport in India started with a 10-kilometer airmail operation between Allahabad and Naini in 1911. However, air transport made its progress only after India attained independence. At the present, India has both domestics and the international airlines. They carry passengers, freight and mail. Okay students, so now this one is the small part of the history of the air transport is given. So if we are going to check the history of the air transport, so now it is now given that in 1911 the air transport started in our country India, and it is not for the long distance. It covers only 11 kilometers from Allahabad to Naini, and this is a we can say that this flight just take the mails from Allahabad to Naini and only cover the 11 kilometers. And again the next point, and the next point is about that the most of the we can say that the development of the air transport it after the independent. जैसे एक बार मैं फिर बता दूं आपको बच्चों कि जैसे हमें पता है कि अगर हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में करते हैं तो ये बहुत पुराने समय से हमारे कंट्री में नहीं चल रहा। पहली बार एयर ट्रांसपोर्ट को हमारे यहाँ 1911 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि पहली बार इलाहाबाद से नैनी तक चलाया गया था, और वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया था और कुछ मेल्स और लेटर्स को लेके वो उड़ा था। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ वो ब्रिटिश एरा में नहीं हुआ, क्योंकि 1911 से लेकर अगर हम लोग 1947 तक देखें तो उस समय हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड था, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो भी डेवलपमेंट हुआ वो उसके इंडिपेंडेंस के बाद हुआ, यानी कि 1947 के बाद हुआ। और आज अगर हम लोग बात करें तो आज हमारे कंट्री में डोमेस्टिक फ्लाइट्स की भी व्यवस्था है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी व्यवस्था है। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे घर के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है, और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल मींस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। Now the Airport Authority of India came into the existence on 1 April 1995 with the merger of the two authorities, National Airports Authority and the International Airport Authority of India. Okay students, now here it is given the total control of the Indian Airlines is under the Airport Authority of India, and in this happened in 1995. The two major agencies now merged together. Now after that, now you see that कि now total 16th largest airline, इसके मिलने के बाद हमारी कंट्री 16th largest airline बन गई एशिया के अंदर में। आज की डेट में 50 डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस हैं और 39 इंटरनेशनल रूट्स को कवर कर रही है। गवर्नमेंट एयरलाइंस जो इंडियन एयरलाइंस है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे लाइक स्पाइस जेट, गो एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड, now Interglobe Aviation Limited means the Indigo, the Vistara. These are the private airlines that are working with the Indian Airlines. Now next topic is the Pawan Hans. Pawan Hans is a helicopter service,
and through this service it is a link service from one place to another। ये बेटा पवन हंस जो है वो लिंक सर्विस का काम करती है। जैसे आपको पता है कि जहां पे अनइवन टेरेन्स है, जैसे हिली एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, ऐसे प्लेसेस में जहां हमारे बड़े प्लेन्स नहीं फ्लाई कर सकते हैं, वहां पर हमारे हेलीकॉप्टर्स जो हैं इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और वहां पर लोगों को पहुंचाते हैं और गुड्स को वहां तक पहुंचाते हैं। Now the next point that we are going to cover, this one is the advantages of airways। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो कवर करने जा रहे हैं वो हमारा एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज है। Air transport is particularly significant for a country like India, in which owing to her vast size, long distance have to be covered between important cities। अगर हम लोग बेटा एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो हमारे कंट्री में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये मैप दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कवर करने में काफी टाइम लगता है, लेकिन इंडियन एयरलाइंस की मदद से हम लोग या एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से हम लोग बहुत आसानी से कम समय में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाते हैं। नाउ नेक्स्ट advantage, it is the fastest and the comfortable mode of transport। It connects the far flung and the remote areas of the country। एक तो जो सबसे बड़ी विशेषता है बेटा इसकी जो इंपॉर्टेंस है, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब कि ये बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाता है और ये कंफर्टेबल भी है, इसमें आपको थकान भी नहीं होती है। देन द स्पीड ऑफ दिस इजी विच एरोप्लेन्स कैन अक्रॉस। इसकी स्पीड इतनी होती है और इतनी ऊंचाई पे उड़ता है कि ये माउंटेन्स को क्रॉस कर जाता है, सैंडी डेजर्ट को क्रॉस कर जाता है, वाटर बॉडीज को क्रॉस कर जाता है, फॉरेस्ट को क्रॉस कर जाता है, जो कि बिना रुके बिना किसी व्यवधान के ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। Air transport is a particular importance during the natural calamities। It is used to airlift people from affected area and airdrop food, medicines and other things। अब जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे बेटा प्राकृतिक आपदा जब आती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस तरह में हमारा एयर ट्रांसपोर्ट बहुत काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे हमें जल्दी से जल्दी किसी पेशेंट को दूसरे जगह ले जाना है, किसी इंजर्ड पीपल को दूसरे जगह ले जाना है, या कोई पानी में फंसा हुआ है जिसकी जान को खतरा है, तो ये इजिली एयरलिफ्ट कर लेता है और इससे लोगों की जान बच जाती है। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, इसका हानि क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट इज कॉस्टली, ये बहुत महंगा है बेटा, सबके बस की बात नहीं है और सब लोग इससे उड़ान नहीं भर सकते हैं। इट इज डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस, ये वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर वेदर अच्छा है तो फ्लाइट उड़ेगी, नहीं वेदर अच्छा है तो फ्लाइट नहीं उड़ेगी। एयर ट्रांसपोर्ट इज रन इन द पेट्रोलियम विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो पेट्रोल से उड़ता है, जो कि नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा नहीं बन सकती। अगर एक बार पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर हम लोग इस ट्रांसपोर्ट का से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट कैन कैरी स्मॉल टनेज बट इट्स हैज हाई फ्राइट चार्जेस। अब जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसमें बहुत बल्कि गुड्स को हम नहीं ले जा सकते, भारी सामान को नहीं ले जा सकते, हल्के सामान को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इसका किराया भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि इंडस्ट्रीज को बहुत प्रॉफिट नहीं होता है। नाउ बेटा इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द वाटर ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।